کیا پاکستان میں خواتین محفوظ ہیں؟ سعودی عرب اور پاکستان ایک دفعہ پھر سے متحرک نظر آ رہے ہیں نیا بیانیہ بنانے کے اوپر۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کا آغاز 11 جولائی سے کرے گا کہ آبنائے ہرمز دنیا کے لیے کوئی گلوبل گراؤنڈ نہیں ہے جس میں وہ کھیلیں اور ہم انہیں کھیلنے دیں گے۔ غزہ کی بات کی جائے تو وہ اب دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہوا ایک پلیٹ فارم کی صورت میں ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان میں ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس کو ریفر کیا جا رہا ہے ریپ کے کیس کے ساتھ۔ آخر مشرق وسطیٰ میں کیا بدل رہا ہے؟ ایران امریکہ کے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بڑی خبر ہمارے پاس موجود ہے۔ 11 جولائی سے مذاکرات کا نیا راؤنڈ ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ جنیوا میں ہونے والے اور قطر میں ہونے والے مذاکرات کے بعد اب دوسرا راؤنڈ شروع ہو رہا ہے اور وہ راؤنڈ اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ابھی تک پاکستانی میڈیا میں اس حوالے سے ہمیں کوئی خاص اپڈیٹ نہیں ملی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا اور خاص طور پر اگر جورشم پوسٹ کی بات کی جائے جو اسرائیل کا بڑا اتھینٹک نیوز پیپر اور ڈیجیٹل میڈیا آرگنائزیشن ہے، تو وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان ایک دفعہ پھر سے متحرک نظر آ رہے ہیں نیا بیانیہ بنانے کے اوپر اور مذاکرات کو مثبت سمت میں آگے کی طرف لے کر جانے کے لیے۔ وہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا بیان جاری کیا ہے۔ اس نیا بیان کا ایران کی حکومت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر جو کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے ہے، ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز دنیا کے لیے کوئی گلوبل گراؤنڈ نہیں ہے جس میں وہ کھیلیں اور ہم انہیں کھیلنے دیں گے۔ دوسری طرف اگر غزہ کی بات کی جائے تو وہ اب دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہوا ایک پلیٹ فارم کی صورت میں ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ آخر مشرق وسطیٰ میں کیا بدل رہا ہے، دنیا بھر میں اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے، یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ صرف یہی نہیں، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات بھی کریں گے کہ پاکستان میں ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس کو ریفر کیا جا رہا ہے ریپ کے کیس کے ساتھ، اور ریپ لاہور میں ہوا ہے۔ اغوا کی گئی خواتین کا تعلق بیرون ملک سے ہے، اس لیے یہ بڑا ہی ہائی پروفائل ڈیولپنگ قسم کا کیس ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے صوفیہ صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں توارے پاکستان۔ توارے پاکستان وہ پلیٹ فارم ہے جو آپ کے لیے ایک ایسی اپڈیٹس لے کر آتا ہے جو دنیا بھر میں ڈیولپ ہونے والی اہم خبروں کے اوپر بیس کرتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کے ساتھ، اور ہمارے پاس موجود ہے وہ خبر جو اب تک جس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں پاکستان کے بہت سارے میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ خبر موجود نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کا آغاز 11 جولائی سے کرے گا، اور اسلام آباد وڈ بی دی سٹی جو کہ اس بڑے ایونٹ کو ایک دفعہ پھر سے ہوسٹ کر رہا ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں بڑی سفارتی کامیابی کے حوالے سے ذکر ہمارے پاس موجود ہے، اور گلوبل میڈیا اس کے حوالے سے بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوحہ میں ہونے والی مذاکرات کا جو پہلا راؤنڈ ہے وہ بہت ہی مثبت انداز میں آگے بڑھا ہے، اور وہاں سے ہمیں کچھ مثبت خبریں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ مذاکرات میں جنگ بندی سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی باتوں کے اوپر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ یادداشت میں جون کے مہینے میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان 4 ماہ تک جاری رہنے والی جنگ بندی کے بعد وہ مناظر تھے جو ہمارے پاس آئے تھے، اور اس کی تمام اپڈیٹس ہمارے چینل پہ مکمل طور پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم نے ہر دن آپ کے لیے کور کیا ہے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد قطر اور پاکستان کی ثالثی طے پائی تھی، اور اسی ثالثی میں 60 روزہ جنگ بندی بھی شامل ہے جو کہ اب تک چل رہی ہے۔ پیش رفت کے تناظر میں پاکستان اور سعودی عرب ایک نئی کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں پاکستان کے
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं वो, और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान के दरमियान टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू हुई है, और इस टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के ऊपर अहम पेशरफ्त के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये मुज़ाकरात अमन मुआहदे को स्ट्रेंथन करते हुए नज़र आएंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और मुतनाज़ा बयान दिया है, और इस मुतनाज़ा बयान के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने आयतुल्लाह खामेनी और इनके अहले खाना की तदफीन के लिए 1 हफ़्ते की मोहलत दे दी है। ये कैसा मजाक है, जबकि इससे कबल हमने देखा था और हमने इस बात को कवर भी किया था कि ईरान ने कहा था कि दोहा में जो अमेरिका की टीम आई हुई है हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान में एक बड़ी तकरीब होने जा रही है जिसमें उन तमाम शोहदाए कराम को जो कि इस जंग के आगाज़ में शहीद हुए थे उनकी तदफीन और तजहीज़ को मुकम्मल तौर पर अदा किया जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया भर का ये एक सबसे बड़ा जनाजा है जो इस वक्त हो रहा है, और अली आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद से लेकर अब तक ऐसे लग रहा है कि ये बात साबित हो रही है कि इस जंग को ईरान ने ही जीता है, और ये इसका मुँह बोलता सबूत है। जिस तरीके से वो अपने शोहदा को दफनाने की तकरीब कर रहे हैं, इसमें पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। आप किसकी बात करते हैं? मतलब कौन सा रहनुमा और कौन सा बड़ा मुल्क है जो अभी तक हमें नज़र नहीं आया, मां सवाए अमेरिका के और इज़राइल को तो हम मुसलमान वैसे भी किसी खाते में नहीं रखते। इज़राइल और अमेरिका के अलावा दुनिया भर के तमाम बड़े ममालिक के डेलीगेशंस मौजूद थे, यहाँ तक कि सऊदी अरब का एक डेलीगेशन भी अली आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वहाँ पर मौजूद था। यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, हमने भारत का भी एक डेलीगेशन देखा जो कि गोया बहुत बड़ा और हाई लेवल डेलीगेशन नहीं था, लेकिन भारत से भी अहम लोग इस जनाजे की तकरीब में हमें मौजूद नज़र आए हैं। माउंट रशमोर में खिताब करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, लेकिन इंसानी हमदर्दी के तहत तदफीन की तकरीबात के लिए 1 हफ़्ता दिया गया है। उधर आलमी सफारतकारी का मरकज़ बनने वाला इलाका ईरान है, और गज़ा की सूरत हाल कुछ दूर होती हुई हमें नज़र आ रही है, और दुनिया भर में जो गज़ा की अहम ख़बरें थी और गज़ा की जो तकालीफ थी बयान की जा रही थी मीडिया हाउसेस में, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता गायब होती हुई नज़र आ रही है। गज़ा के एक रिहायशी अहमद जमाली ने मीडिया से गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंग और इस कशीदगी की वजह से गज़ा कि इंसानी अलमिये को दुनिया भुला चुकी है, और जबकि इज़राइल अपनी कार्रवाइयों को जारी रखे हुए है। उधर यूरोपीय काउंसिल फॉरेन रिलेशंस के तज्ज़ियाकार हियो ल्यूवेट कह रहे हैं कि गज़ा बतदरीज आलमी तवज्जो से बाहर निकलता जा रहा है, और मुख्तलिफ जो सफारती ज़राए हैं उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद हुकूमतें इस मसले को कलील और दरमियानी मुद्दत में हल तरफ नहीं समझ रही हैं। उधर ईरान आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक बड़ा बयान देते हुए सामने आ रहा है, और उन्होंने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से किसी भी गैर मुल्की फोर्सेस को गुज़रने की या इस रास्ते से नकलो हरकत करने की इजाज़त नहीं दी है। यानी कि वो ख़बरदार कर रहा है दुनिया भर के उन ममालिक को जो किसी भी तरीके से ये समझते हैं कि वो अब भी आबनाए हुर्मुज़ पे अपना कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, और आबनाए हुर्मुज़ में या ईरान से मुताल्लिका जो ममालिक हैं उन पर अपना गैर कानूनी और गैर इलाकाई जो ताकती सिलसिला है उसको बढ़ाना चाहते हैं। आबनाए हुर्मुज़ की सलामती के ज़ामिन होने के नाते आबी गुज़रगाह में भी किसी भी किस्म की फ़ौजी नकलो हरकत को ईरान कबूल नहीं करेगा, ऐसा कहना है ईरान का। और उन्होंने एक और बयान में मज़ीद ये कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की सलामती और साहिली रियासतों की ज़िम्मेदारी भी ईरान की है। कोई भी मुल्क अगर इस इलाके में मुहिम जोई की कोशिश करेगा या बुहरान पैदा करने की कोशिश करेगा तो ईरान उससे खुद बेहतर अंदाज में निमटने के लिए तैयार है।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तुर्किया में मौजूद हैं, जहां उनकी तुर्क सदर से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात के उमूर और पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन जो बरादराना और शराकतदारी का निज़ाम और एक रवाबित कायम है, इनको मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से तबादला ख़्याल किया गया है। इस्तांबुल में वज़ीर आज़म ने रजब तैयब एर्दोगान के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया है और इस खिताब के दौरान तुर्क सदर का कहना था कि पाकिस्तान के वफ़द को वो तुर्किया में खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के उमूर, आलमी और इलाकाई सूरत हाल के ऊपर बातचीत की गई है और दोनों ममालिक ने अपने ताल्लुकात और जो मुस्बत अंदाज में इस जंग के बाद की पेशरफ्त है उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है। और एक ऐसी ख़बर के ऊपर बात करते हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का सिलसिला बनी हुई है। सोशल मीडिया पर बड़े एक्सपर्ट, बड़े तज्ज़ियाकार इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ मैं आपको इसके अपडेट दूं तो इस खबर में दो अहम चीज़ें हैं। दो गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान लाया गया, उनको सरकारी प्रोटोकॉल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पर घुमाया गया, जिसमें नथिया गली और मोहल्ले का इलाके शामिल हैं। उसके बाद इन्हें लाहौर में DHA में लेकर जाया गया, जहां इन्हें एक घर में बंद कर दिया गया। इत्तफाकन उनकी गाड़ी किसी मूवमेंट के दौरान एक और गाड़ी से टकराती है, जिस पर ये दोनों ख़वातीन शोर मचा देती हैं और शोर मचाने के बाद इनको पुलिस रिकवर कर लेती है। लाहौर में ये दो गैर मुल्की ख़वातीन कैसे पहुंची? बहुत से एक्सपर्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुबैना तौर पर ये कह रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा का ऑफ़िस इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा का भतीजा इन्वॉल्व है, यानी कि नेफ्यू इन्वॉल्व है। और आगे चल के आपको बताएं तो इन दोनों ख़वातीन ने जब इनकी गाड़ी की टक्कर हुई है तो इन्होंने गाड़ी में से छलांग लगाई है और मदद के लिए पुकारना शुरू किया है। ये दावा इन दोनों में से एक खातून ने किया है, जो कि आज मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही थी। जुम्मे के रोज़ से इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बातचीत हो रही है। हमारे पास अपडेट ये है कि जुम्मे के रोज़ लाहौर के कैंट में दो ख़वातीन जो कि गैर मुल्की थी, मुबैना तौर पर इनको अगवा करने वाले 4 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया था, जहां मजिस्ट्रेट जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं अज़हर महमूद, उन्होंने पुलिस की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज करते हुए मुल्ज़िमान को 5 रोज़ा रिमांड में भेज दिया था। पुलिस ने अदालत को मुल्ज़िमान के हवाले से बताया है कि ये 14 रोज़ा रिमांड की दरख्वास्त दी थी, ताहम उन्हें अदालत ने 5 रोज़ा तहवील में रहकर रिमांड की बात की है, जो कि अप्रूव हो चुकी है। फैसले के बाद पुलिस मुल्ज़िमान को अपने साथ लेकर रवाना हो गई थी। ये मुकदमा लाहौर के डिफेंस का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर दर्ज किया गया था। जुमेरात के रोज़ इन ख़वातीन को बाजियाब करवाया गया था। जहाँ से इन्हें बाजियाब करवाया गया था वो DHA का एक बड़ा एलीट और अमीर घर था, और उस घर में से 4 मुल्ज़िमान को ज़ेरे हिरासत भी लिया गया है। इस मुकदमे की तफ्तीश का आगाज़ तो हो चुका है, ताहम अभी तक जो पुलिस के लोग हैं वो अपना नाम ना जाहिर करने की सूरत में, हम BBC का एक कोड आपको बता रहे हैं कि BBC को उन्होंने ये बताया कि मुतासरा खातून ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान रिकॉर्ड किया है उसमें इन्होंने यही बयान दिया था कि वो एयरपोर्ट जाते हुए गाड़ी उनकी जब टकराई है तो उन्होंने उस गाड़ी में से छलांग लगा दी है। वो एयरपोर्ट क्यों जा रही थी, अगवाकारों ने उन्हें वहाँ पे क्यों रखा था, ये सारे ऐसे सवालात हैं जो अभी तक नताइज के मुंतज़िर हैं, और पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो एक बड़ा अलमिया है, इससे कुछ दिनों पहले हमें एक खातून नज़र आई थी जिनका ताल्लुक़ फ़्रांस से था, और वो एक साहब से शादी करके मोहब्बत करके फंस गई थी, और उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के बहुत ही फार फ्लंग एरियाज़ में वज़ीरिस्तान के इलाके में एक घर में रखा गया था, जहाँ से पुलिस ने उनको उस वक्त बाजियाब करवाया जब उनका बेटा जो तकरीबन 12 साल का हो चुका था वो उस जगह से किसी तरीके से भागकर पुलिस तक पहुंचने में कामयाब हो गया। लेकिन
سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان میں خواتین محفوظ ہیں، کیا پاکستان میں خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ایسے میں 2 غیر ملکی خواتین کا پاکستان آنا اور اس کے لیے جن چینلز کا استعمال کیا گیا ہے وہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ نہ صرف پاکستان میں خواتین کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، آپ اس کیس کے 2 اینگلز دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اینگل یہ کہ اس میں غیر ملکی خواتین تھی۔ ہم نے پوری دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ گرین کارڈ لینے کے لیے امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں ان کی جو PR ہیں، پرماننٹ ریزیڈنسی ہے، وہ لینے کے لیے کسی سے بھی شادی کر لیتے ہیں، پیپر میرجز کرتے ہیں، اس کے بعد وہ طلاق دیتے ہیں، اور یا پھر ان خواتین کو یکسر بھلا کر وہ پاکستان آتے ہیں، اپنے بیکورڈ علاقے سے اپنی کسی بھی خاندان کی عورت سے شادی کرتے ہیں، جس کو وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ اس سے پہلے وہ کسی خاتون سے شادی کر کے آ چکے ہیں۔ یہ پاکستان میں غیر ملکی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو ملکی خواتین ہیں ان کے ساتھ ہم کسی الگ ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ وہ کس قسم کے جھنجھٹ، مسائل اور پریشانی کا سامنا کر رہی ہیں پاکستانی مردوں کے اس پیٹرن کی وجہ سے جو کہ پیٹریارکی کی وجہ سے ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو سے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم نے کوشش کی کہ دنیا بھر میں ہونے والے ان تمام معلومات اور ان تمام انفارمیشن کے اوپر بات کریں جو ہم سب کی زندگیوں پر، صحت پر اور ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ایران اور امریکہ کیا کرتا ہے؟ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ 11 جولائی کو پاکستان میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایسی ہی مستند، بروقت اور غیر جانبدارانہ خبروں کو دیکھنے کے لیے توارے پاکستان کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ اوتھینٹک انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں۔